Okay, dear students, I'm going to start fourth unit with you simultaneously so that we are able to complete syllabus well in time. We are going to have both the units simultaneously. So in this particular unit of yours deals with hydrocarbons, their reactions, preparations, etc. So first of all, we are going to study aliphatic hydrocarbons. As you know, aliphatic hydrocarbons are those hydrocarbons which are open chain and they are not aromatic. And aliphatic hydrocarbons, they are of three types: alkanes, alkenes and alkynes. So first of all, we are going to discuss about alkanes. So you know, alkanes are those hydrocarbons which which are saturated. They don't have any double or triple bond. They have general formula CnH2n plus 2. So basically hydrocarbons, I hope you know what are hydrocarbons. Hydrocarbons are those compounds which contain carbon and hydrogen. These are actually the parent compounds of organic compounds. You know, all of your compounds having different functional groups, they are basically derivatives of hydrocarbons. It can be alkyl halides, it can be aldehyde, be ketones. They are basically simple alkanes or simple hydrocarbons which have functional groups in them. So as per your syllabus, you have to study about alkanes and its preparation and its other properties. So we are going to start with preparation today. So preparation of alkanes, there are so many methods of preparing alkanes, but we are going to stick to those methods which are mentioned in your syllabus. So first method of preparation of alkanes I'm going to discuss with you is called electrolytic method. This particular method, it involves electrolysis of sodium salt of carboxylic acid, aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid to produce alkanes. You know, this, for example, I have taken this salt, sodium salt of carboxylic acid. This particular is sodium acetate, as you know. So when we acetate aqueous solution of sodium acetate, we electrolyze it, we get ethane. So electrolysis, you know, electrolysis is ionization of this is migration of ions under the effect of electric current. They solutions of salts or those compounds which are ionizable when they are their aqueous solutions, when electricity is passed through them, they get ionized and they migrate to different electrodes. So this sodium salt of carboxylic acids, when they are electrolyzed, they eventually give us alkanes. So what happens basically in these compounds is decarboxylation reaction. What is decarboxylation reaction? Decarboxylation reaction is removal of carbon dioxide. That carbon dioxide gets removed in this process. So basically Kolb का जो method है ये decarboxylation reaction ही है. So we use it for the synthesis of alkanes. So the main thing I am going to discuss here is its mechanism, that how decarboxylation takes place. So what happens, हमारे पास जो सोडियम एसीटेट है, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये आयनाइज हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में ये आयनाइज हो जाएगा into acetate ions and sodium ions. Acetate ions are negatively charged and sodium ions are positively charged. वहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड. एनोड जो है हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है. सो व्हाट हैपन्स दैट हमारे पास जो एनोड है, यहाँ पर हमारी एसीटेट आयंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स द anode. They will migrate towards the anode. So what happens that when they migrate towards the anode, they lose electrons there, because at anode always oxidation takes place. तो हमारे यहाँ anode पे क्या होती है? Oxidation. और जो कैथोड होती है वहाँ पर होती है reduction. तो जो हमारी acetate ions हैं, they will move towards the anode. So what happens when these acetate ions या कोई भी carboxylate ions, when they move towards the anode, तो हमारे पास ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर है. सपोज यहाँ पर एनोड है, तो व्हाट इट डज, इट गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू एनोड, इट ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू एनोड. तो हमारे पास यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट आ जाता है? वी गेट CH3, C डबल बॉन्ड O और एक इलेक्ट्रॉन इसने इसमें से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और वी गेट अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, एक रेडिकल स्पीशीज़ हमें मिल जाती है, विच रीअरेंजेस, बिकॉज दिस स्पीशीज़ इज़ अनस्टेबल. ये अनस्टेबल है. जब भी हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होती हैं, दे आर नॉट वेरी स्टेबल. इट रीअरेंजेस इटसेल्फ टू प्रोड्यूस
समवट स्टेबल फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी जो थर्मोडायनेमिकली इससे ज़्यादा स्टेबल हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड क्लीव होगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो हमें मिल जाता है CH3 radical plus carbon dioxide gas. So you know what happens that carbon dioxide gas is a thermodynamically very stable molecule और ये बहुत आराम से रिलीज हो जाती है। अब जो हमारे पास CH3 रेडिकल मिल गया है, ये CH3 रेडिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट एक और CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल तो हमारा ऐसे रेडिकल जनरेट एक ही मॉलिक्यूल में नहीं होगा, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में होंगे साइमल्टेनियसली। सो ये वाले मॉलिक्यूल लास्ट में जो ये फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं, ये दोनों ऐसे इस स्टेप को बोलते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस, और इस तरीके से हमारे पास हमें एल्केन्स मिल जाते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल प्रोसेस। आयोनाइजेशन हो जाएगी, आयोनाइजेशन के बाद एसिटेट आयंस जनरेट होते हैं और हमारे पास कैटायंस जनरेट होती हैं। जो एसिटेट आयंस जनरेट होते हैं दे मूव टूवर्ड्स द एनोड, और हमारे पास they lose electron, and eventually what happens that when they lose electron they form this free radical species. ये जो radical species है ये rearrange होके हमारे पास एक free radical generate करती है which terminate to produce ethane. So you know what happens that this particular जो हमारे पास ये reaction है, इसमें हमारे पास कैथोड पे भी एक reaction हो रही होती है। देखिए आप, ये reaction water में है तो obviously पानी भी हमारे पास आयनाइज होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, तो इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन है इट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, तो हमारे पास कैथोड में जाके जो हमारा ये प्रोटॉन है ये वहाँ रिड्यूस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा वहाँ पर, एंड व्हाट डू वी गेट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, सो हाइड्रोजन गैस भी इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, और जो आपका सोडियम वहाँ से रिलीज हुआ है इट विल रिएक्ट विद दिस OH नेगेटिव एंड वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो दिस इज द कोल्ब्स सिंथेसिस। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसको 2-3 बार पढ़िए एंड यू विल रियलाइज कि दैट इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। इसका मैकेनिज्म जो है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम इससे ड्राइव करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस है जिससे हम अपनी सिंथेसिस करते हैं, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमारे पास, उसकी रिएक्शन कुछ ऐसी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हम बोलते हैं RMgX जो है उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिन कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉइटी जो है वो मेटल के साथ जुड़ी हो। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम मेटल है और R जो है अल्काइल या एराइल जो भी कंपोनेंट है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ये बहुत एक अच्छी क्लास ऑफ कंपाउंड्स है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी सिंथेटिक केमिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो इसके बाद आप बहुत सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस पढ़ेंगे वेर यू विल फाइंड द यूज़ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। आई एम श्योर आपने इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसकी मदद से हम जो है एल्केन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखिए जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें R पे एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज लिस्सी मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो व्हाट हैपन्स दैट जब हम इसकी रिएक्शन किसी भी ऐसी मॉइटी के साथ कराते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, एज सिंपल एज वाटर में भी हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो हमारे पास R है ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वी गेट RH प्लस Mg X पॉजिटिव OH नेगेटिव, हमें ये कंपाउंड मिल जाता है। इस जो बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना ये बहुत सेंसिटिव रिएजेंट्स हैं, वाटर की प्रेजेंस में इमीडिएटली ये रिएक्शन दे देते हैं। इसमें ये जो ये है ये बॉन्ड ये बहुत ईजिली क्लीव हो जाती है एंड वी गेट दिस। और भी कोई अगर चीज़ हो तो जैसे मैंने आपको उसमें जो मटीरियल्स शेयर किया उसमें मैंने आपके साथ एसिड भी लिखे हैं, कोई एसिड भी अगर होगा, एसिड का हाइड्रोजन भी ये पॉजिटिव होता है ओबियसली, तभी तो ये रिलीज हो जाता है। तो ये इस पे अटैक करके इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड वी गेट CH3COO नेगेटिव MgX पॉजिटिव प्लस RH।
तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से हमारे पास जो है वी कैन सिंथेसाइज हाइड्रोकार्बन्स। तो ये 2 मेथडोलॉजीज़ हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस की। तो नेक्स्ट मेथडोलॉजी है वर्ट्स रिएक्शन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।